Hello everybody, this is a part of your foundation series for CAB examination, and particularly we are talking about the ABM component of your CAB exam. This particular video is for unit number 30th, as till now we have completed your unit number 26 till unit 29, so 4 units are done for your foundation series, and I hope that you guys have revised whatever is being taught in the class and tried to solve more number of questions on your own. So the chapter name is compliance culture and GRC framework. सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का जीआरसी फ्रेमवर्क ही रहने वाला है, बिकॉज एवरी ईयर वी हैव सीन दैट वन क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, बट वी विल ट्राई टू नो दैट कंप्लायंस कल्चर होता क्या है. बेसिक ओवरव्यू लेंगे उसका, सो दैट वी कैन मेक मोर सेंस आउट ऑफ द जीआरसी फ्रेमवर्क. First of all, let me remind you that we have launched our CAB 2024 master course, which will cover all the 4 compulsory subjects of your CAB exam, that is ABM, BFM, ABFM and BRBL. इसके deliverables क्या रहने वाले कोर्स के? There will be recordings of various topics which will be covered in 400 videos, plus 150 plus chapter wise tests will be there. Along with that, full length mocks will also be provided to you. As your exam will approach in November, we will be starting the live classes in this particular course only, so do consider subscribing it if you find it useful. And also we are running flat 75% discount currently, so do check it on our website and enroll if you feel that this course will help you to crack the exam. Now let's start today's topic, that is compliance culture. अब कंप्लायंस कल्चर में हमें पता क्या होना चाहिए? वैसे तो आप ये टर्म दे के समझ गए होंगे कि कंप्लायंस कल्चर मींस कि हम कुछ ऐसा एक फ्रेमवर्क जो है डिफाइन करने वाले हैं जिसके थ्रू कंप्लायंस जो है वो इंक्रीज हो. फाइन, एक पर्टिकुलर कल्चर बने, जैसे वर्क कल्चर हम बोलते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ वर्क को हम इंक्रीज करना चाहते हैं. ऑन द सिमिलर लाइंस जो आपकी टर्म है कंप्लायंस कल्चर, इट रफली मीन्स दैट आपका जो कंप्लायंस है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे केस में स्पेसिफिकली बैंक्स में, उसको हम इंक्रीज करना चाहते हैं, उसकी कंप्लायंस को इंक्रीज करना चाहते हैं. सो वर्क प्लेस बिहेवियर दैट नेचुरली मीट्स एथिकल एंड लीगल नॉर्म्स इज more or less a compliant culture, and it is more or less related to your compliance in banks. Fine, naturally meets is the कीवर्ड हेयर, बिकॉज ऐसा कहीं सेट ऑफ डिफाइंड रूल्स नहीं है कि आपको जो है ये वाला बिहेवियर शो करना है तभी हम बोलेंगे कि जो वर्क प्लेस बिहेवियर है वो एस्टैब्लिश हुआ या नहीं हुआ. फाइन, सो सबसे पहले वर्क प्लेस बिहेवियर जो है इट इज़ द सुपर सेट जिसके अंदर फॉल करता है आपका कंप्लायंस कल्चर. Compliance is adhering to the established norms which take the form of external laws, internal policies and ethical values. तो आपने क्या समझना है? कंप्लायंस कल्चर में आपके पास जो भी रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं सेट करें रेगुलेटर्स ने, वेरियस रेगुलेटर्स आर देयर इन द मार्केट, प्लस आपका जो बैंक पॉलिसी है वहाँ पे जो नॉर्म्स हैं, अलॉन्ग विद दैट जो एथिकल बिहेवियर है, ये तीनों के तीनों अगर आप इनको क्लब करो देन यू कैन से दैट यस आवर बैंक और आवर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज फुली कंप्लाइड विद द कंप्लायंस कल्चर. Values depend on the organization but can take the form of things like reputation and employees personal ethics and goals. Fine, so it varies from an organization to another organization that how the values are defined, but more or less अगर आप देखेंगे तो good and bad behavior is normally defined in every workplace. Fine, and similarly for your compliance culture also, it is a norm which is being set by regulators and we are implementing it using the respective bank policy. Additional चीज़ क्या है? Additional चीज़ है ethical behavior. अगर आप ethical behavior को हटा देते हैं तो आपके पास simply compliance norms बच जाएंगे. Fine, जैसे ही आप ethical behavior ऐड करेंगे you will say कि जो particular set of rules and regulations हैं they have been turned into a good compliance culture. Regulators are most concerned with an organization meeting the external laws, fine, and related policy, whereas the board members जो आपके बैंक के respective board members हैं, the employees and the public expect compliance according to the internal policies and values. Okay, तो compliance जब हमने start भी किया था तो कंप्लायंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन में हमने बात करी थी कि जो आपका रेगुलेटर्स हैं और जो आपके बैंक की पॉलिसी है वो गवर्न करते हैं एक पर्टिकुलर
कंप्लायंस ऑफ द बैंक को। बट अगर आप कंप्लायंस कल्चर की बात करें तो उसके अंदर काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं अलॉन्ग विद योर रेगुलेटर्स एंड बोर्ड मेंबर्स। वहाँ पे आपके कस्टमर्स जो हैं, जो पब्लिक है, वो भी एक पार्ट होएगा कंप्लायंस कल्चर का। ओके, तो अगर क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट बेस्ड जिसके अंदर स्टेक होल्डर्स के नाम गिवन है कंप्लायंस कल्चर में, तो डेफिनेटली कस्टमर्स और द जनरल पब्लिक विल ऑल्सो बी दी करेक्ट आंसर। अब कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं कंप्लायंस कल्चर के, वो देख लेते हैं एक एक करके, सो दैट हमें थोड़ी और क्लैरिटी आए कि कंप्लायंस कल्चर की अगर बात हो रही है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में तो वो एक्सपेक्टेशंस क्या हैं हमसे। फाइन, सो टोन एट द टॉप, दिस इज द फर्स्ट एट्रीब्यूट। मतलब जो आपका सीनियर मैनेजमेंट है वो कितना एथिकली और कितना मॉरली डिफाइन कर पाते हैं एक पर्टिकुलर वर्क प्लेस बिहेवियर को। सबसे पहले तो यही चीज़ है। अलॉन्ग विद दैट उनकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो कितनी है। इफ इट इज हाई देन वी विल से कि यस द टोन एट द टॉप हैज बीन मेंटेन्ड, और हम ट्राई करेंगे कि इसको इम्प्रूव करें। फाइन, सो डिसीजन मेकिंग एंड द एथिकल बिहेवियर ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट डिफाइंस द टोन एट द टॉप। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब आपके जो वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी वर्टिकल्स हैं, क्रेडिट का हुआ, देन डिपॉजिट्स का हुआ, फिर उसके बाद वेल्थ मैनेजमेंट का हुआ, उनका एक इंटीग्रेशन, उन सभी डिपार्टमेंट्स में आपका जो कंप्लायंस है वो कैसे डिफाइंड है और उस कंप्लायंस को अचीव करने के लिए कौन से नॉर्म्स हैं वो यहाँ पे वेल डिफाइंड रहेंगे इंटीग्रेशन में। साइलोज अगेन इज अ पार्ट ऑफ योर इंटीग्रेशन ओनली, कि आपको किसी भी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को सिंगल वे में नहीं देखना है। सिंगल वे मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप उसको सिंगल आउट कर दो कि ये तो क्रेडिट का डिपार्टमेंट है, इसके अंदर सिर्फ जो क्रेडिट के हेड हैं वही देखेंगे। नो, एज अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन देखना आपने। ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल की हम बात करेंगे जब भी हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं या साइलोस की बात करते हैं इन दी कंप्लायंस कल्चर। पावर, वेल डिफाइंड पावर मस्ट बी देयर, कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है वो कैसे रहने वाली है। कौन सी गवर्निंग अथॉरिटी कौन से पर्टिकुलर वर्टिकल ऑफ योर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को गवर्न करने वाली है इन टर्म्स ऑफ कंप्लायंस। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है यहाँ पे काउ बॉयज की। नॉर्मली हम क्या सोचते हैं कि काउ बॉयज का मतलब क्या होगा कि आपके पास जो भी बैंक में डिफाइंड पॉलिसीज हैं उसको इम्प्लीमेंट किया और अपना काम जो है वो खत्म कर दिया। बट ऐसा नहीं है। काउ बॉयज का मतलब ये है कि आपने जो काम किया उसके लिए आपको क्या रिवॉर्ड मिला। फाइन, सो रिवॉर्ड सिस्टम इज डिफाइंड इन योर काउ बॉयज एट्रीब्यूट। नेक्स्ट वी हैव एम्प्लॉय बाय इन। यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो मिसकंडक्ट है उसके बारे में बात होती है। तो ये जो टर्म्स हैं जैसे एम्प्लॉय बाय इन हुआ या फिर आपका काउ बॉयज हुआ, ये आपने ध्यान से पढ़नी है क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि काउ बॉय सिस्टम जो है उसके अंदर क्या होता है। नो, उसमें स्टेटमेंट में दे देंगे कि रिवॉर्ड सिस्टम प्रेजेंट है या नहीं। और अगर आपने सिंपली एट्रीब्यूट्स का ओवरव्यू लिया होगा और सिर्फ आपने काउ बॉयज टर्म देखी है, आगे पढ़ा ही नहीं कि उसके बारे में क्या होता है, देन चांसेस आर हाई कि आपका जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाए। एंड सिमिलरली फॉर एम्प्लॉय बाय इन एज वेल, यहाँ पे आपका मिसकंडक्ट जो कीवर्ड है आपको पता होना चाहिए। अगर एम्प्लॉय बाय इन की बात हो रही है तो इट मीन्स कि मिसकंडक्ट इज नॉट टॉलरेटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी। सो जैसा कि आप जानते हैं कि बैंक्स में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में या कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन में आजकल हर एक चीज़ जो है वो डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है। एंड टेक्नोलॉजी इज द न्यू वर्ड for every work which you want to do, be it AI or blockchain technology. Fine, so that must be also included in your compliance culture as well. Documentation, proper documentation must be there. जो भी आप काम कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में उसका डॉक्यूमेंटेशन होना ही चाहिए। फाइन, डॉक्यूमेंटेशन कहाँ पे हेल्प करती है आपको? अगर आप बैंक की बात करें तो ऑडिट में, सेल्फ ऑडिट हुआ, एक्सटर्नल ऑडिट हुआ। फाइन, रिसोर्सेज दे मस्ट बी वेरी वेरी यू कैन से स्पेसिफिक टू द टास्क। ऐसा नहीं है कि स्पेशलिस्ट इज रिक्वायर्ड इन लेट्स से मार्केटिंग टीम और आप एक जर्नलिस्ट को वहाँ पे भेज रहे हो। नो, रिसोर्सेज मस्ट बी देयर ड्यू टू विच यू कैन से यूजिंग दोज रिसोर्सेज वी विल बी मोर complied in a particular branch और in a particular vertical। अगर मार्केटिंग में कंप्लायंस की ज़रूरत है तो हमें मार्केटिंग ऑफिशियल ही चाहिए, वहाँ पे जर्नलिस्ट बैंकर का कोई काम नहीं है। देन लिविंग कंप्लायंस प्रोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंप्लायंस पॉलिसी में। आपको अपडेशन जो है वो करते रहनी है। ऐसा नहीं है कि 2024 में जो आपने नॉर्म्स बनाए वो 2024-25 में एज इट इज़ आप रख देंगे। नो, आपने मार्केट ग्राउंड्स पे जाके देखना है कि आपके पास जो 2025 का डेटा है क्या वो 24 से रिलेट कर भी रहा है या नहीं। अगर कर रहा है देन यू कैन कंटिन्यू विद द पॉलिसी, नो प्रॉब्लम। इफ नॉट देन यू मस्ट अपडेट द सेम।
इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमें और आइडिया मिले कि क्या हमने जो पढ़ा है हमें समझ भी आया या नहीं आया. सो विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कंप्लायंस कल्चर इन द बैंक्स. 3 स्टेटमेंट्स आर गिवन, वन बाय वन देखते हैं. द कंप्लायंस कल्चर इज अ सेट ऑफ बिहेवियर इन लाइन विद द एथिकल नॉर्म्स एज इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी लीगल रेगुलेशन टू बी फॉलोड. तो एथिकल नॉर्म्स की तो बात हो रही है, फाइन, बट लीगल रेगुलेशंस जो है वो उसका पार्ट है. कंप्लायंस कल्चर का कौन से हमने देखे थे? 3 पार्ट. एक तो रेगुलेटरी, देन बैंक पॉलिसी एंड योर एथिकल बिहेवियर. सो रेगुलेटरी और बैंक पॉलिसी में क्या आते हैं आपके? लीगल नॉर्म्स आर डिफाइंड, फाइन, रेगुलेशंस आर देयर. सो फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी incorrect. Then we have the major drawback of well defined attributes in compliance culture is that it does not talk about the reward system. No, this is wrong. Cowboy system talks solely about your reward system. Employee buy-in defines the updation system present for your compliance policy in banks. Again, this statement is wrong because employee buy-in defines your misconduct. Okay, so option D will be the right answer, that none of these statements are correct. So thank you everybody. This was it for the first part of this unit. In the next part we will comprehensively cover the GRC framework. If you like the content which we provide on our YouTube channel, you can consider subscribing it. The channel's name is EduTab JIIB CIIB. If you have any doubt related to your preparation, or for that matter this lecture, or any feedback you want to give, you can definitely mail us at hello@edutab.co.in. This is the mail ID. And if you want to contact us telephonically, this is the number. Keep revising whatever is being taught in your lectures, plus try to make notes out of it.